Hey everyone, so today we are going to discuss perfection batch set 1, and today I will do only 5 questions because today is the first day. So we will do only 5 questions and then you can tell me in comment section where I need to improve and just give your honest opinion and nothing else, okay? Because I don't want to waste your time if I am not able to make you understand anything. So, but I will try my best and then you have to tell me where I am lacking and if I need to keep on doing it. Okay? So, just give your honest opinions. I won't, I'm not here to, make any false promises or anything, and I am not any pro in English. So, I will try my best and let's start from the first question. So the first question is, the closed system accounted for a considerable revenue share of 86.4% in 2018 and will show a dash growth trend during the analysis time frame. So what this mean? This means that in 2018 we had a revenue share of 86.4%, okay, and when the time of analysis comes then it will show a dash growth trend, means we had a revenue share of 86.4%, then a positive word will come here, okay. Then next sentence is, India's possible role in developing the terminal had become a dash flashpoint within the government. सो इंडिया का जो रोल है वो टर्मिनल को डेवलप करने में वो इन गवर्नमेंट के अंदर ही क्या बन चुका है, इसमें भी एक फिल इन द ब्लैंक है. नाउ वी विल मूव टू द वर्ड्स. फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट मीन्स विच कैन बी नोटिस्ड, ओके, which requires attention, like which we can notice. Then encroaching means to intrude in, sorry, encroaching means to intrude in someone's personal life or their space, okay. So encroaching का means होता है to intrude, घुसपैठ करना. Then subordinate as you all know, subordinate is lower rank. Then collateral means which is connected. So what will come here? Connected can't come here because will show a connected growth trend, कोई सेंस नहीं है. इंक्रोचिंग मीन्स टू इंट्रूड, कहीं पे घुसपैठ करना. इंक्रोचिंग भी सेंस नहीं दे रहा दोनों में. देन सबॉर्डिनेट क्या होता है? लोअर रैंक. तो सबॉर्डिनेट का भी कोई सेंस नहीं बन रहा. ग्रोथ ट्रेंड लोअर रैंक का नहीं हो सकता और ये लोअर रैंक का फ्लैश पॉइंट गवर्नमेंट के लिए नहीं हो सकता. सो व्हाट वी हैव लेफ्ट? सिग्निफिकेंट मीन्स विच कैन बी नोटिस्ड, ओके. So significant will come here because significant growth trend, and here significant flash point within the government, okay. So these questions are based on vocabulary, so you need to make your vocabulary strong for doing these questions, and here significant will be the answer. Then the next question is, the coronavirus pandemic will accelerate any SPS pivot away from conventional dash to investing in greener facilities. तो कोरोना वायरस पेंडेमिक है वो क्या करेगा? ENSPIAs जो है ना, उसको उनका जो कन्वेंशनल मेथड है उससे हटाकर उनको किस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको किस चीज में इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा? ग्रीनर फैसिलिटीज में, ओके. द नेक्स्ट इज, तो द कंट्री इज शॉर्ट इन प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल. कंट्री जो है वो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर, उसमें कमी है कि वो क्रूड ऑयल को इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. विच इज टर्न्ड इनटू फ्यूल, जिसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? फ्यूल में. एट डैश इट मैन्युफैक्चर सरप्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वहां पे क्या होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो इसमें बेसिकली वी नीड अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल एंड कन्वेंशनल डैश टू. तो जो इन दोनों से रिलेट करे हमें वो वर्ड चाहिए. देन वी विल सी द ऑप्शंस. फर्स्ट इज सप्लाईज. सो वी विल चेक फ्रॉम कन्वेंशनल सप्लाईज टू इन्वेस्टिंग एंड देन इनटू फ्यूल एट सप्लाईज, कोई भी सेंस नहीं बन रहा है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट मीन्स
जिस चीज की जरूरत होती है। तो फर्स्ट में फ्रॉम कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट, इसका भी कोई सेंस नहीं है। सेकंड में तो बिल्कुल ही नहीं है, इनटू फ्यूल एड रिक्वायरमेंट्स। देन है रिफाइनरी। सो रिफाइनरी क्या होता है, जहाँ पे क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ENS5 जो होता है उसको उसकी कन्वेंशनल रिफाइनरी से, मतलब वो कन्वेंशनल रिफाइनरी में इन्वेस्ट करता है, तो उससे हटकर वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ग्रीनर फैसिलिटीज में। ओके, सेंस बन रही है। देन नेक्स्ट इज कि फ्यूल, क्रूड ऑयल इज टर्न्ड इनटू फ्यूल एट रिफाइनरीज। सो ये भी सेंस बन रही है कि उसको क्रूड ऑयल को फ्यूल में कन्वर्ट रिफाइनरीज में किया जाता है। तो रिफाइनरीज विल बी द आंसर। एम्बिशंस, एम्बिशंस क्या होता है, एम्बिशंस हमारी डिजायर्स होती है। ओके, सो हमें दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स, so we can understand simply that refinery will be the answer. So the next question is NFLPA has dash on the financial side of the pandemic negotiations. So NFLPA कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या है कि जो पेंडेमिक की नेगोशिएशंस हो रही हैं उसको उस साइड पे कुछ है, मतलब उसको कुछ या तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ वर्ड यहाँ पे आना है। Then next is we feel that developers can and should dash all the best qualities of each platform by embracing multi-platform development। कि जो डेवलपर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको इनको क्या करना चाहिए कि सभी प्लेटफॉर्म की जो बेस्ट क्वालिटीज है ना उनको डेवलप किया जा सके। ओके, सो वी विल सी द वर्ड्स नाउ। फर्स्ट इज रिफ्यूट। सो रिफ्यूट क्या होता है, रिफ्यूट होता है किसी को रॉन्ग प्रूव कर देना। तो इसमें तो ऐसा कोई सेंस बन रही ना है कि डेवलपर्स कैन एंड शुड रिफ्यूट ऑल द बेस्ट क्वालिटीज, की सभी बेस्ट क्वालिटीज को गलत प्रूव कर दे, तो ये इसका कोई सेंस नहीं है। देन बी इज एस्पाउज। सो एस्पाउज मीन्स होता है हु इज आवर सपोर्टर। ओके, इस वर्ड को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि आपके स्पाउस हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो एस्पाउज होता है हु इज योर सपोर्टर। ओके, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट इज इनग्रेटिएट। सो इनग्रेटिएट का मीन्स होता है किसी को प्लीज करना, लाइक ट्राइंग टू अट्रैक्ट और प्लीज समवन। देन नेक्स्ट इज लेवरेज। सो लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज की बेस्ट एडवांटेज लेना। ओके, देन कंफाउंड। कंफाउंड मीन्स होता है कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। सो we can see here that NFLPA has dash on the financial side of pandemic negotiation। की पेंडेमिक की जो बातचीत हो रही है उसके फाइनेंशियल साइड पे NFLPA को क्या क्या है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। ओके, सो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लेवरेज। देन नेक्स्ट इज वी फील दैट डेवलपर्स कैन एंड शुड लेवरेज ऑल द बेस्ट क्वालिटीज, कि उनको जितने भी प्लेटफॉर्म की जितनी भी बेस्ट क्वालिटीज है उनको क्या करना चाहिए, उनका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। Okay, so here leverage will be the answer. Then next is he is certainly an intelligent, thoughtful individual, but we need someone a little more dash to lead us into the next election। कि वो क्या है, इंटेलिजेंट है, थॉटफुल है, ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा डैश जो हमें नेक्स्ट इलेक्शन में लीड कर सके। ओके, देन नेक्स्ट इज हर रिसेंट एक्रिलिक एब्स्ट्रैक्शंस। सो ये जो दोनों वर्ड है इनका मीनिंग होता है पेंटिंग्स, एक टाइप का ये पेंट होता है, सॉलिड पेंट जिसको बोलते हैं। तो हर रिसेंट एक्रिलिक एब्स्ट्रैक्शंस आर बोल्डली ग्राफिक विद रेडिएंट कलर्स इन डैश जियोमेट्रिक कंपोजिशंस। तो उसके जो रिसेंट जो पेंट्स है ना उसके वो किससे भरे हुए हैं, वो रेडिएंट कलर से भरे हुए हैं एंड जियोमेट्रिक कंपोजिशन, और वो अलग अलग शेप्स के हैं। ओके, सो इसमें हम अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज इम्प्लॉजिबल। सो इम्प्लॉजिबल होता है, प्लॉजिबल क्या होता है, प्लॉजिबल होता है कन्विंसिंग, ठीक है, जो हमें कन्विंसिंग लगता है, जो हमें सही लगता है वो होता है प्लॉजिबल। इम्प्लॉजिबल क्या होता है, जो हमें सही नहीं लगता है। ओके, देन नेक्स्ट इज इंट्रासिग्नेंट। सो इंट्रासिग्नेंट मीन्स होता है जो अपने, जो किसी की बात नहीं सुनता है, लाइक वो अपने व्यूज को वैसे ही रखता है, इंट्रासिग्नेंट। दिस इज अ डिफिकल्ट वर्ड बट इंट्रांसिग्नेंट जो अपने व्यूज को बिल्कुल वैसे ही रखता है, उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। उसके बाद है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक वो होता है जो हमें ड्रोजीनेस दे देता है, लाइक वी फील स्लीपी।
ओके। देन डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक होता है विच कीप्स चेंजिंग, लाइक किसी का डायनेमिक नेचर होता है, ओके, लाइक इट कीप्स चेंजिंग टाइम टू टाइम in a positive way, not in negative way. Then there is admonitory. Admonitory क्या होता है? किसी को वार्निंग दे देना, ओके। सो a little more dash to lead us into the next election. So implausible तो आ नहीं सकता कि वो कन्विंसिंग ना हो, लेकिन क्योंकि उसमें पहले ही उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज बताई है ना, तो आगे भी कुछ पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इनको इंटेलिजेंट और थॉटफुल से ज्यादा चाहिए, ओके। देन इंट्रासिग्नेंट, इंट्रासिग्नेंट भी नहीं हो सकता कि मतलब वो अपने व्यूज ही चेंज करने से मना कर दे, नहीं। देन सोपोरिफिक तो बिल्कुल नहीं होगा कि जो हमें ड्रोजी बना दे। देन एडमोनिटरी, जो वार्निंग दे दे, इसका भी कोई सेंस नहीं है। तो डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है? जो विच कीप्स चेंजिंग, ओके। सो डायनेमिक विल बी द राइट आंसर। रेडियंट कलर्स इन डायनेमिक ज्योमेट्रिक कॉम्पोजिशंस, ओके। सो उसकी जो पेंट था वो क्या था? बड़ी बड़ी उसके अलग अलग टाइप की उसकी शेप्स थी जो चेंज होती रहती थी विद रेडियंट कलर्स इन डायनेमिक ज्योमेट्रिक कंपोजिशंस, ओके। पेंट था उसके रेडियंट कलर्स थे और जो बार बार चेंज होती रहती थी उसकी ज्योमेट्रिक कंपोजिशन। ज्योमेट्रिक कंपोजिशन होता है, ये शेप्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है ज्योमेट्रिक कंपोजिशन, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीथिंग विजिबल वॉज मेड ऑफ वुड। जितना भी विजिबल था वो किससे बना हुआ था? वुड से। एंड द सीन सीम्ड स्टिफ। स्टिफ क्या होता है? स्टिफ होता है विच इज हार्ड, विच इज फॉल्स, ओके। एंड डैश अननेचुरल। और मतलब सब कुछ किससे बना हुआ था? वुड से बना हुआ था। और जो सीन था वो कैसा लग रहा था? वो बहुत ही अननेचुरल, बहुत ही फॉल्स लग रहा था। द नेक्स्ट इज द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ डैश, कि एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो किसका रिफ्लेक्शन है? मोडेस्ट ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही कम जो ग्रोथ हो रही है उसका रिफ्लेक्शन है। एंड इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, और प्रोटेक्शनिज्म जो इंक्रीज हुआ है उसका रिजल्ट क्या हो गया है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो इसमें मोडेस्ट ग्रोथ अगर ग्लोबल ट्रेड में होगी, लाइक बहुत मामूली ग्रोथ होगी। और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म वो होता है जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में आने से रोकने के लिए, लाइक वी टेक एग्जांपल ऑफ चाइना, ओके। सो वी मेक मैनी इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, सो टू सेव आवर इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना, लाइक हम अपने प्रोडक्ट्स को चाइना के प्रोडक्ट्स से बचाने के लिए क्या करेंगे? चाइना के प्रोडक्ट्स पर बहुत सारा टैक्स लगा देंगे, ओके। सो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि जब हम अपनी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा देते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको प्रोटेक्शनिज्म बोला जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे ग्रोथ, एक्सपोर्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ओके। सो जब प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और ग्लोबल जो ट्रेड है वो बहुत ही कम हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चन ऑप्शंस। फर्स्ट इज प्रिकेरियसली। सो प्रिकेरियसली क्या होता है? प्रिकेरियसली वो होता है जो चेंज पे डिपेंड करता है, ओके, जो सर्टेन नहीं होता बिल्कुल भी। देन इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है किसी को वार्निंग दे देना, ओके, या ऑर्डर दे देना, उसको क्या बोलते हैं? इंजंक्शन। देन वर्चुअली, वर्चुअली हमको पता ही है विच इज नॉट रियल, ओके। देन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या होता है? बहुत ही बड़े लेवल पे। देन कॉशियसली, कॉशियसली होता है टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, लाइक किसी चीज को हम जब बहुत सावधानी से करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉशियसली। तो इसमें क्या आएगा? प्रिकेरियसली आ सकता है। प्रिकेरियसली क्या होता है कि मतलब जो सर्टेन नहीं होता है, तो इसमें सीम्ड स्टिफ एंड प्रिकेरियसली अननेचुरल, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। देन नेक्स्ट इज इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? किसी को वार्निंग दे देना, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा। वर्चुअली अननेचुरल, तो इसका भी कोई सेंस नहीं है, लाइक वर्चुअली इननेचुरल। एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ वर्चुअली मोडेस्ट ग्रोथ, जो सो वर्चुअली अननेचुरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब बड़े स्तर पर, ओके। सो हियर एक्सट्रीमली विल बी द आंसर, बिकॉज एक्सट्रीमली अननेचुरल, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे वो अननेचुरल लग रहा था। द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली मोडेस्ट ग्रोथ, की जो बहुत ज्यादा स्तर पर मामूली ग्रोथ हो रही है ना,
लाइक हर जगह ही ऐसा हो रहा है कि ग्रोथ का रेट बहुत कम है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीमली आएगा, कॉशियसली, बहुत ही सावधानी से, इसका भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट today we have done 5 questions. One more thing is that the telegram group which I made, I deleted it because many of the aspirants were not able to join that group, so I deleted that group. Okay, I will add, if you want I can add the slides of questions and answers in the last of the video if you want, and otherwise you can give me suggestions on the telegram group or channel, because yesterday, one day before yesterday, I made the group, but then I deleted it because I got many comments like we are not able to join the group, any like this. So I deleted it because फिर उसमें सभी ऐड नहीं हो पा रहे थे, तो I deleted it. Okay, so give me any suggestion, like should I upload any PDF? I don't know how to make PDF of a page. I will try to do my best from the next video to upload the PDF in the comment section. Okay, I will give you link of PDF in the comment section from the next video, and I will add these questions in that PDF also. Okay, so just today try to manage, because I am not also feeling well. I did not want to make this video today also, because I was not even well, but then I thought that I have made a commitment of uploading the video today itself, so I just did 5 questions. Okay, whenever I start feeling well, we will start doing 10 questions. Okay, and one thing I want to promise you is that we will cover it before August, before the mains exams. Okay, so take care of yourself and your family, and if you are not feeling well, then take rest and drink lots of water, because whenever we are ill we become dehydrated. So just keep drinking water and take care of yourself and your family. Okay, I know many of you are ill and sick and demotivated. I am also demotivated. Okay, I am also not able to study these days much, but don't push yourself these days, because we all are going through a very bad time. So just take care of yourself and your family members. Okay, and just take rest from studies if you are not feeling well. Watch some movies, anything you like. Yesterday I was feeling so much demotivated, like I didn't know what to do, so I just shared it in the daily schedule video also. Maybe many of the aspirants do not watch that whole video, so maybe. And one more thing is that if you want to practice more and more English questions like RC, okay, RC, close test, parajumble, etc., then you can go for Guidely Bundle PDF course. Okay, you can use my code. I will give you link in description of that PDF course. You can purchase it and do practice from that. Every subject's PDF is uploaded every day, and you don't need to worry about question practice material. Okay, plus video solutions are also available, so go for it if you want to, and it's very useful. Okay, so that's all for today's video. Thank you, take care of yourself, and God bless you.